Let's open Matthew chapter 27 हम मत्ती का 27वां अध्याय खोलेंगे। and let's read from verse 15 till 24. वचन 15 से 24 तक हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। Everybody have opened their Bibles to Matthew 27? क्या सबने अपने अपने बाइबल को खोला है? मत्ती 27. मत्ती 27वां अध्याय पे 15 वचन से आगे पढ़ेंगे। Okay, I'm going to read in the King James Version. मैं किंग जेम्स वर्जन में पढ़ूंगा। And it says, Now at that the feast, the governor was wont to release unto people a prisoner whom they would. हाकिम की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिससे वे चाहते थे छोड़ देता था। And they had then a notable prisoner called Barabbas. उस समय उनके यहाँ बरहबा नाम एक माना हुआ बंदी था। Therefore, when they were gathered together, Pilate said unto them, Whom will you that I release unto you? अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? Barabbas or Jesus, which is called Christ? बरहबा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? For he knew that for the envy they had delivered him. क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है। So, I want to take you back again, मैं तुम्हें फिर से वहां लेना चाहता हूँ, almost 2000 years back, as to Dua- what exactly happened. 2000 साल पहले कि वहां कब वो समय जब क्या हुआ था। In fact, let us look at one more scripture. Let us look at Leviticus 16. हम और एक अध्याय देखते हैं, लेवी व्यवस्था 16वां अध्याय, And let's read from 7 until 10. 7 वचन से आगे पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था 16वां अध्याय 7 वचन से आगे पढ़ेंगे। Here, basically, the scripture talks about a sacrifice, how the Jews were meant to sacrifice. यहाँ पे हम देखते हैं बलिदान के विषय में कि यहूदी लोग बलिदान कैसे चढ़ाते थे। Yeah, so before the eventual goat, the lamb was killed, how it happened was, it is written in verse 7, and it says, And he shall take 2 goats and present them before the Lord at the door of the tabernacle of the congregation. तो बलिदान करने के समय से पहले जो चीजें हुई वो यहाँ पे लिखी हैं। तो ये कहता है, और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे। And Aaron shall cast lots upon the 2 goats, one lot for the Lord, and the other lot for the scapegoat. और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो। And Aaron shall bring the goat upon which the Lord's lot fell, and offer him for a sin offering. और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए। Yeah, now I want you to imagine what I'm about to tell you. मैं चाहता हूं कि आप सब वो दृश्य को सोचे। When God the Father gave this commandment unto the people of Israel, जब अब्बा पिता ने ये सब आज्ञा इज़राइल के लोगों पर दी, that was almost 3,000 years before Jesus came. जो 3000 साल पहले प्रभु यीशु आने से पहले हुई। And what we read here is there were 2 goats, तो वो क्या करते थे? 2 बकरियां होते थे and Aaron would cast a lot. और हारून उसमें से उनको चुनता था। You know? And on whichever goat the lot fell on, that goat used to be taken for the sacrifice for the Lord. तो जिस किसी बकरे पर चिट्ठी निकलती थी तो वो यहोवा के बलिदान के लिए लिया जाता था। Correct? Now imagine the same picture we get to see at the time of Jesus and Barabbas. अभी ये
ये जो दृश्य है वो हम यीशु और बरहबा के विषय में सोचते हैं। When Jesus was scourged, when he was all beaten down, जब प्रभु यीशु के शरीर को तोड़ा गया, मोड़ा गया था, he was standing with Pilate. वो पिलातुस के सामने खड़ा हुआ था। And the sight of Jesus being tortured was something which was not even worthy to see. और प्रभु यीशु का जो दृश्य था तभी वो काफी भयानक था, हम देख भी नहीं सकते, ऐसा भयानक था। Many weeks back, I had given you a glimpse of how the crucifixion looked like. कुछ हफ्तों पहले मैंने आपको इसी बारे में एक दृष्टांत बताया था कि क्रूस पर चढ़ाना कैसे होता है। Yeah, and there were certain requirements that the Jews had to keep in mind. So, number one, both the goats that were offered, they were needed to be identical. तो कुछ ऐसी चीजें थी जो यहूदी लोग ध्यान में रखा करते थे, जैसे कि जो दो बकरियां थे वो सिमिलर थे, समान थे, एक समान होते, Almost alike. एक समान ही होते थे, कुछ अंतर नहीं, कुछ फर्क नहीं उन दोनों में। Yeah. And then we get to see Jesus is standing in front of Pilate with his body scourged, and Pilate is asking, "Whom shall I deliver unto you all, or whom do you want that I should make you all free?" और यीशु पिलातुस के सामने खड़े होते हैं और पिलातुस पूछता है लोगों से कि आपके सामने मैं किसको छोड़ दूं, यीशु को या बरहबा को। Now, have you ever imagined what is the meaning of Barabbas? क्या आपको पता है बरहबा का मतलब क्या है? You all will be amazed to know the meaning of Barabbas. Why only that man at that particular hour was present with Jesus at that moment. आपको ये सोचकर काफी एक्साइटमेंट होगी कि उस जगह पे बरहबा ही क्यों था, प्रभु यीशु के सामने, पिलातुस के सामने प्रभु यीशु के साथ बरहबा ही क्यों था? Have you ever thought that question? Have you ever asked that question to yourself? क्या आपने ये सवाल कभी पूछा है आप स्वयं से? There could have been so many different people there at that point of time, but among all so Roman people, they used to keep prisoners within their walls, within their castles. तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों को वह बंदी बना के रखा करते थे, लेकिन सिर्फ एक उनमें से प्रभु यीशु के सामने चुना गया था। And imagine the plan of God. They chose one person whose name was Barabbas, who was actually one of the worst thief. एकदम like इतना lifetime prison वाला उसके पास उसके ऊपर ये they would have just given a lifetime sentence for him, but still they have brought this man called Barabbas to stand with Jesus, and Pilate is asking, whom shall I set free? और बराबा नामक व्यक्ति जो था वो प्रभु यीशु के साथ तुलना में एकदम उसके विरोध में, जैसे वो एक जाना हुआ ऐसा व्यक्ति था, ऐसा चोर था, इसने ऐसे ऐसे गंदे काम किए थे, ऐसे कुकर्म किए थे, जिसके लिए हमारे पास मतलब उन रोमी सैनिकों के पास देने के लिए कुछ शिक्षा भी दी थी, ऐसा माना जाना हुआ, ऐसा वो बंदी था बराबा। I have so much to talk about Barabbas, history, background, but that will be for next time. But I want you to understand what is the meaning of Barabbas? What do we know from that? मैं बराबा के बारे में बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन कभी बाद में बोलूँगा, पर मैं ये चाहता हूँ कि आप बराबा का मतलब समझें। So Barabbas comes from a Hebrew word. So, बराबा यह जो नाम है एक हिब्री शब्द है। It is divided into two words, bar. ये दो इसमें इसकी डिफरेंशिएट किया जाता है, एक बार और अबस. और आबस। Bar, abas. बार आबस, दो शब्द। So bar's meaning in Jewish So बार का मतलब यहूदियों में is called son. उसका मतलब है पुत्र, And abbas comes from the word father. और अबस का मतलब है पिता। I want you to just imagine this, okay? The goats needed to be identical. मैं चाहता हूँ आप ये दृष्टांत को एक बार सोचें कि जो दो बकरियां थे वो समान थे। In the same way, Jesus and Barabbas had to also become identical. उसी इसमें प्रभु यीशु और बराबस दोनों समान हो गए थे उस समय। Jesus, which is the Son of God, प्रभु यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, and Barabbas, which also means the son of father.
और बाराबस उसका भी मतलब यह है पिता का पुत्र, Son of the Father and Son of God. God and Father is like same, right? परमेश्वर का पुत्र और पिता का पुत्र दोनों समान है। What does it teach us, guys? यह हमें क्या सिखाता है? Jesus had to become identical to us in each and every way in order for him to accomplish the sacrifice. प्रभु यीशु को हमारी तुलना में एक होना पड़ा ताकि वो खुद को बलिदान दे सके। Barabbas was a murderer, was a sinful man, was a thief. बराबस जाना हुआ कैदी था, वह चोरी करता था, खून खराबा करता था। Jesus took all of Barabbas' sin on himself. प्रभु यीशु ने बराबस का सारा पाप खुद पर ले लिया। Barabbas represents each and every person which is born in this world. बराबस यह चिन्हता है हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया में पैदा हुआ है, Because we all are created from God. क्योंकि हम सब परमेश्वर से निर्मित हुए। Whether you believe it or not, that's not going to change the fact. ये उस फैक्ट को बदलता नहीं है। अगर आपको फिर भी अगर आप सोचे तो ये उस फैक्ट को नहीं बदलता है। Whether you believe in God or not, but in God's eyes, He has created you, He has made you. आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन आप परमेश्वर के प्रतिरूप में बनाए हुए हो। And when Jesus was standing there, like the goat, both the goats were innocent, but one goat, on which the Lord fell, that goat, all the priest used to lay hands on that goat, and all the curse, all the sins were declared upon that goat, and it was then offered. और प्रभु यीशु वहाँ पे एक निर्दोष बकरे के समान वहाँ पे थे, और वह बकरे थे जिनमें से एक पर जिस पर भी चींटी आए उसको बलिदान के लिए यहोवा के सामने चढ़ाया जाता था। So Jesus died in our place to make sure that we are free from every curse of the law. सो प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दे दी ताकि हम छुटकारा पा सके हर एक दुष्टाई से। When sickness hits your body, when negative thinking, poverty thinking hits your mind, all you have to think about is Jesus taking your place. जब हम पर कभी भी कोई भी नेगेटिविटी आती है, कोई भी बीमारी आती है, तो हम प्रभु यीशु की तरफ ध्यान लगा के देखें कि उसने ये सब हमारे लिए 2000 साल पहले ही ले लिया है। And because of that, we have already been set free. और उसी के वजह से हम छुटकारा पा चुके हैं। You see, the love of God was so massive that He had to give His only Son to free His another Son. तो आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम इतना था कि उसको अपने पुत्र को देना पड़ा अपने बाकी पुत्रों को बचाने के लिए। What a wonderful Father we have, right? कितना महान परमेश्वर पिता अपने साथ है ना? Let's bow our heads down and close our eyes and thank the Lord for His offering. हम अपने मस्तक को उसके सामने झुकाते, हम सिर को झुकाते हैं। Father, we thank you for the wonderful sacrifice that you already had planned before the foundation of the world. पिता, हम धन्यवाद करते हैं उस अद्भुत बलिदान के लिए जो आपने योजना किया था इस सृष्टि के निर्माण से पहले। And thank you for making us a part of the beloved family, Lord. और धन्यवाद करते हैं प्रभु हमें उस परिवार का हिस्सा बनाने के लिए। प्रभु Lord, we declare right now that from today onwards, प्रभु हम यह कहते हैं कि आज ही से we are victorious over everything that the enemy has to offer. हम हर एक उस शत्रु के सामर्थ्य पे विजयी है प्रभु। We are victorious over sickness. हम विजयी है उन बीमारियों पे। We are victorious over poverty. हम उस सारी दरिद्रता पे विजयी हुए हैं। We are victorious in preaching your word. हम विजयी है प्रभु आपका शब्द सुनाने के लिए। And we are not going to be afraid. और हम डरेंगे नहीं प्रभु, because you are with us, Daddy. क्योंकि आप हमारे साथ हैं पिता। And you said you will never leave us nor forsake us. और आपने कहा है कि आप हमें कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी त्यागेंगे नहीं। And Father, you said, और पिता आपने कहा है in my name मेरे नाम से you shall cast out demons, you shall heal the sick, you shall raise the dead. If you drink anything deadly, it shall by no means harm you. आप दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, बीमारियों को चंगा करोगे, और कुछ भी प्राणघातक वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी।
So Lord, we believe in your promises because your word is yes and amen. तो प्रभु हम विश्वास करते हैं उन सारी प्रतिज्ञाओं पे, क्योंकि आपने उसे हाँ और आमीन में हमें उत्तर दिया है। As we partake in this communion, Lord, हम प्रभु भोज की विधि में जैसे परमेश्वर भाग लेते हैं, we receive all the blessings that you have linked with it. हम उन सारे आशीर्वादों को परमेश्वर पिता ले लेते हैं हम पे। Thank you, Father. धन्यवाद करते हैं पिता। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We give you all the glory, honor, and praise. हम आपको सारी आदर, महिमा और गौरव देते हैं, And we receive it in thanksgiving. Amen. और हम उसे धन्यवाद के साथ लेते हैं। आमीन। प्रेज गॉड। सभी को जय मसीह की। किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज में हम सभी का स्वागत करते हैं जो पहली बार हमसे जुड़ रहा है, और पहली बार अगर आप यहाँ पे आए हो तो हम आपका स्वागत करते हैं किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज में। एंड आगे बढ़ते हैं। मुझे बस ये पूछना है कि अगर किसी को गवाही देनी है तो अपने मनों को तैयार करें। हम गवाही वचन के बाद हम गवाहियों को लेंगे, है ना। गवाही अपने पास ना रखें। प्रभु ने अगर आपके जीवन में कार्य करा है तो उसके नाम को हम धन्यवाद करेंगे। आपकी गवाही ये दूसरों के लिए आशीर्वादित होती है। सो आप प्लीज़ अपनी गवाहियों को तैयार रखें, राइट। और किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज जो है ये सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। आपको अगर आप प्रभु के वचन में बढ़ना है तो हमारी प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, आप सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट को आप सुन सकते हो। हर एक चीज़ के बारे में आप सुन सकते हो, समझ सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रश्न है आप टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। साथ ही में एक छोटा सा ब्रांच है जिसका नाम है KBS किंगडम बाइबल स्कूल, जो बच्चों के लिए होता है। अगर आप अपने बच्चों को एनरोल करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा होगा, आप उसको स्कैन करके एनरोल कर सकते हैं। या फिर और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको नंबर भी है हमारे पोस्टर्स पर, उस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। या फिर अगर किसी के पास अलीशा आसिस का पर्सनल नंबर है तो आप उनको भी डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं, राइट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। वचन में हम बढ़ेंगे। वचन बांटने के लिए दोबारा से हमारे साथ मैन ऑफ फेथ, आई वुड से, ही इज़ डिलन ब्रो। ही इज़ वेरी अमेजिंग, जो बहुत ही अच्छे से बच्चों की तरह वो हम सबको वचन एक्सप्लेन करते हैं। सो वो भी बहुत तैयारी के साथ आए हैं। क्या आप लोग तैयार हैं वचन में बढ़ने के लिए? यस। सो लेट्स वेलकम डिलन ब्रो एंड आशीष ब्रो। हम 1 मिनट अन्य भाषा में बात करते हुए बताएंगे।
रे रा 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 खाला रा बशे बेरे 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 खाला रा बशे थे रे अंतनारी बोरी बारी खाला रा बशोब्रा बाबा निहांता निकरा बारी बोरी बारी 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 खाला रा बशे के थे रे रा 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 खाला रा बशाब्रो बाबा मामा मा के थे रे रा थोरा थेरे खिलियन थोने ब्रहा बुशे थे रियल अंतना ब्रोबे खिलिया रब्रो बाबा बशाको रब्रो बाबे नंते अलो शेखेरे ला रा थारी और खलारा बशे ब्रोबी हंतना रिब्रो बामा मामा शेखे थेरे ला हादोरे ला हालेलुया हे शेखे थेरे ला शानी अदना रिब्रो बाबा 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 खेले थोरी Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद Thank you, यीशु Jesus. थैंक यू जीसस सेब्रा है अंतनारी ब्रोबा खिलारा बशे के थेरा ला बहारो खलारा Shabash, shabash. Shodo rodari kalara bashe de he lakari bro mama mama shade tere le bro baba baba ba shodo do rakalara baha. Okay. So, today Brother Sam began by taking Psalm 91. तो आज भाई सैम ने भजन संहिता 91 से शुरुआत की. So, in that, the first line was, He who dwells in the secret place of the Most High. उसका पहला वचन है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे. So, what is that secret place? तो वो छुपा हुआ स्थान क्या है? Anyone knows what is the secret place that Psalm 91 is talking about? It's not only in Psalm 91, it's there in a lot of different other Psalms as well. तो कोई जानता है कि ये छुपा स्थान जो भजन संहिता 91 में कहता है वो कहाँ वो क्या है? क्योंकि केवल भजन संहिता 91 में नहीं लेकिन कई और जगह लिखा हुआ है कि छुपा हुआ स्थान वो क्या है? David has written this many times in his Psalms. दाऊद ने बहुत बार उसके भजन में ये लिखा है That how pleasant it is to dwell in the secret place of the Lord. कितना अद्भुत है कि परमेश्वर के हम छुपे हुए स्थान में रहे. So I always, when I used to read, I used to wonder, what is the secret place? तो जब भी मैं इसको पढ़ता था तो मैं हमेशा आश्चर्य करता था कि ये छुपा हुआ स्थान क्या है. And it is not really a physical place. तो ये सच में एक वास्तविक जगह नहीं है. It is a spiritual place ये आत्मिक जगह है that we can access through our spirit. जिसको हम हमारे आत्मा के द्वारा उसमें जा सकते हैं. And it is talking about how we become one with God और ये दिखाता है कि हम परमेश्वर के साथ में एक कैसे होते हैं in that place. उस जगह पर. And although we are talking about a spiritual idea, a spiritual concept of becoming one with God, तो हाँ हम लोग ये बात कर रहे हैं कि आत्मिक तौर से हम परमेश्वर के साथ में एक कैसे हो सकते हैं. but there is also a physical place लेकिन एक वास्तविक जगह भी होती है that God demonstrated जो परमेश्वर ने हमें दिखाई है where we become one with God. जहाँ हम परमेश्वर के साथ में एक हो जाते हैं. And whenever David spoke about that secret place, और जब कभी दाऊद ने उस छुपे हुए स्थान के बारे में बात किया so he did talk about that spiritual place, उसने उस आत्मिक जगह के बारे में बात नहीं की but he was also referencing this physical place. बट उसके साथ में वो इस वास्तविक जगह के बारे में भी बात कर रहा था. So do you know what was that physical place? तो आप क्या जानते हो कि वो जगह क्या थी? It is, let me tell you that it is in the Ark of the Covenant. वो प्रभु के तंबू के विषय में कहता है. In the Ark of the Covenant, तो परमेश्वर का जो तंबू है वाचा का जो तंबू है it was like a box shaped. वो एक बॉक्स के तरह बॉक्स के रूप में था. इसके inside that there was the 10 commandments. उसके अंदर 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने दी थी वो रखी हुई थी. The rod of Aaron. आरोन की जो छड़ी थी वो रखी हुई थी. And a bowl of manna. और जो मन्ना था वो रखा हुआ था. But that was inside the box. लेकिन ये उस बॉक्स के अंदर रखा हुआ था. On top of the box there was a lid. और उस बॉक्स के ऊपर एक उसको ढक के रखा हुआ था. Which was made of wood. जो लकड़ी से बना हुआ था. On top of that it was laden with gold. और उसको सोने से बनाया हुआ था. And on top of that there were 2 cherubims. और उसके ऊपर 2 करीब थे. Which were facing each other. जो एक दूसरे का सामना कर रहे थे. And their wings would touch each other. और उनके जो पंख थे वो एक दूसरे को स्पर्श करते थे. The tips of their wings would touch each other. जो उनके पंखों के जो पंख थे वो एक दूसरे से स्पर्श करते थे. And in between there was a place, there was a gap. और उनके बीच में एक खाली जगह थी. And that gap, that place is where the high priest would come once in a year inside the Holy of Holies.
और उस खाली जगह पर जो महायाजक था वो साल में एक बार महापवित्र स्थान में जाता था he would come with blood of the sacrificed animal, और वो जो बलिदान किया हुआ लहू लेकर उस जगह पर जाता था and he would sprinkle that blood in that place. और वो जो महायाजक था वो उस लहू को वहाँ छिड़कता था उस जगह पर. And there is a very deep meaning to why that was done. और इस बहुत गंभीर उसका महत्व है, ऐसा क्यों किया जाता था. But we are not going to look at that today. तो हम उसको नहीं देखने वाले आज. But what I will say is, बट मैं आज जो कहना चाहता हूँ, in that place, it is always referenced that God would come and dwell in that place between the cherubims. तो ऐसा कहा जाता था जो दो करूब थे उनके बीच में जो जगह थी वहाँ परमेश्वर आकर लोगों से मिलेंगे, ऐसा कहा जाता था. You will also find this in the Psalms, ये आप भजन में भी देखोगे that God who dwells between the cherubims. कि जो परमेश्वर जो दो करूब के बीच में रहता है. And when the Ark of the Covenant and when the tabernacle was first made, तो जो वाचा का संदूक जो है, जब पहली बार वो जब बनाया गया, this was in the wilderness when the Israelites had come out of Egypt. तो ये तब हुआ जब इज़राइल के लोग मिस्र से बाहर निकलकर जंगल की ओर गए. And they were near Mount Sinai. और वो सीनाई पर्वत के ऊपर गए. And God gave the 10 commandments to Moses और at Mount Sinai. और परमेश्वर ने मूसा को सीनाई पर्वत पर 10 आज्ञाएं दी. And not only that, he also gave him the design of the tabernacle and the Ark of the Covenant. और परमेश्वर ने केवल इतना ही नहीं, लेकिन उसको वाचा का संदूक, उसका पूरा जो डिजाइन था वो कैसे बनाना है वो सब कुछ उसको दिया. And there is great detail if you read in the book of Leviticus and also in Deuteronomy. तो आप ये सारी चीज़ें आप काफ़ी विस्तार से पढ़ सकते हो व्यवस्था विवरण और लेवी व्यवस्था में. That you will see all the details that God has mentioned, how the tabernacle is to be constructed, what material is to be used, and how it should be structured. तो परमेश्वर ने काफ़ी विस्तार से वहाँ लिखाया है कि जो परमेश्वर की जो तंबू है, मिलाप का तंबू, वो कैसा होना चाहिए, कौन से लकड़ी से, कौन सी वस्तुओं से बनाया जाना चाहिए, उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें विस्तार से परमेश्वर ने वहाँ दी हुई है. Okay, so before I can get into the main message that I want to speak to you about, तो मैं मेरे जो आज का टॉपिक है उसमें जाने से पहले I want to just talk to you about one small incident regarding the Ark of the Covenant. तो मैं उसके पहले आपसे छोटी सी एक घटना के विषय में बात करना चाहूँगा, परमेश्वर की जो वाचा का संदूक है उसके विषय में. Okay, so we all understood now from what I said that God dwelt between the cherubims. तो हमने अभी तक समझा कि परमेश्वर दो करूबों के बीच में रहते हैं. And whenever Moses spoke to God, और जब कभी मूसा ने परमेश्वर से बात किया, his face would shine with that glory, तो उसका जो चेहरा था वो परमेश्वर की महिमा से प्रकाशमान होता था, which is also called the Shekinah glory of God. तो जिसको शकाइना महिमा भी कही जाती है परमेश्वर की. His face was so bright and shining उसका चेहरा इतना ज़्यादा तेज प्रकाशित होता था that the people couldn't look at his face. कि लोग उसके चेहरे को देख नहीं पाते थे. And they told him to put a veil over his face. और उन्होंने कहा कि तुम्हारे चेहरे पर एक पर्दा डाल दो. And he used to wear a veil whenever he met God and he came out. तो जब कभी मूसा परमेश्वर से मिलता था और बाहर आता था, तब उसको उसके चेहरे को ढकना पड़ता था, पर्दा डालना पड़ता था. Okay, so this is the background I wanted to give you. तो Now, ये उसका बैकग्राउंड मुझे आपको देना था. now we'll go to 1 Samuel chapter 4. अब हम जाएंगे पहला शमूएल उसका 4था अध्याय. And we'll read right from verse 1 where Samuel for the first time is called by God. Audibly God calls his name Samuel, Samuel. तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कैसे शमूएल को एक आवाज़ देकर पुकारता है, शमूएल शमूएल. And from there his ministry actually starts. He's still a child at that time. तो ये उस समय बच्चा ही था शमूएल. But God had anointed him to be the prophet. लेकिन परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था भविष्यवक्ता होने के लिए. Now we will read from verse 1 of 1 Samuel chapter 4. तो हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 4था अध्याय पहले वचन से. And the word of Samuel came to all Israel.
और शमूएल का वचन सारे इज़राइल के पास पहुंचा। Now Israel went out to battle against the Philistines and encamped beside Ebenezer. और इज़राइली पलिश्तियों से युद्ध करने को निकले और उन्होंने एबनेजर के आसपास छावनी डाली। And the Philistines encamped in Aphek. और पलिश्तियों ने अपेक में छावनी डाली। Then the Philistines put themselves in battle array against Israel. और तब पलिश्तियों ने इस्राएल के विरुद्ध पांति बांधी। And when they joined battle, Israel was defeated by the Philistines, और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इज़राइली पलिश्तियों से हार गए। who killed about 4,000 men of the army in the field. और उन्होंने कोई 4,000 इज़राइल के सेना के पुरुषों को मैदान में ही मार डाला। Now this is before a king was appointed for Israel, और ये बात हो रही है जब इज़राइल के ऊपर कोई राजा नहीं था। and at the end of the period of the judges who were judging Israel. और ये वो समय था जब न्यायी लोग थे जो इज़राइल का न्याय करते थे। So just towards the end of the period of judges, और इसके जो न्यायी जो थे उनके समय के अंत तक the Philistines came against Israel. तो जो पलिश्ती थे वो इज़राइल के विरुद्ध आए। And this is what this verse we just read is that the Philistines they defeated Israel. About 4,000 men of them were killed. और हमने अभी यही पढ़ा वचन 2 में कि पलिश्तियों ने इज़राइल के विरुद्ध युद्ध किया और 4,000 इज़राइली लोग वहाँ मारे गए। Verse 3 says, and when the people had come into the camp, the elders of Israel said, why has the Lord defeated us before the Philistines? और वचन 3, जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इज़राइल के वृद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें पलिश्तियों से क्यों हरवा दिया है? Let us bring the ark of the covenant of the Lord from Shiloh to us, that when it comes among us, it may save us from the hand of our enemies. आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक शीलो से मांग ले आए कि वह हमारे बीच में आकर हमारे शत्रुओं के हाथ से बचाए। I want you to pay attention to how it is being addressed. It says, let us bring the ark of the covenant of the Lord from Shiloh to us. Okay, that part is there. And then the next part is that when it comes us among us, it may save us. So the word it is used. तो अगर हम यहाँ ध्यान से पढ़ते हैं वचन 3 में, तो वो लोग कहते हैं कि आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक शीलो से मांग ले आए। तो ये पहला भाग हुआ। और बाद में वो कहते हैं कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। तो यहाँ जो वह लिखा है वो महत्वपूर्ण है। So what the people of Israel did, तो इज़राइल के लोगों ने क्या किया? they no longer saw this as the dwelling place of God. तो उन्होंने ये परमेश्वर की जो वाचा का संदूक है उसको परमेश्वर के रहने की जगह करके उसको केवल उतना ही नहीं देखा, Because they made it into an object अब उन्होंने उसको एक वस्तु बना लिया and they called it it. और उन्होंने उसको वह करके पुकारा। Okay, so we can see that the respect, the reverence that Israel used to give to the Ark of the Covenant was gone, and now it was replaced by just the word it. तो पहले इज़राइल के लोग उस वाचा के संदूक को काफी आदर देते थे, लेकिन अब उन्होंने उसको एक वस्तु बना लिया। They made it like a lucky charm, उसको एक लकी चार्म करके उन्होंने बनाया उसको, so that if it comes near to us, we will get saved and we will win the battle. तो वो ऐसे होगा कि अगर ये वस्तु हमारे पास में रही तो हम जीत जाएंगे, हम बचाए जाएंगे, अगर हमसे दूर हो गई तो हम हार जाएंगे। That is not how God works. परमेश्वर इस तरह से काम नहीं करता। God doesn't want to be your lucky charm. परमेश्वर आपका लकी चार्म नहीं बनना चाहता, He is your blessing. वो आपकी आशीष है। And we have to reverence God. और हमें परमेश्वर का आदर करना है, Give him the right place. उसको सही जगह देनी है। So this is the situation where the people of Israel reduced the Ark of the Covenant to an object. तो ये जगह है जहाँ पर इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर की जो वाचा का संदूक था उसकी महिमा को कम करके, उसके आदर को कम करके एक वस्तु में बदल दिया। So we'll read ahead. It says, so the people sent to Shiloh, that was where the Ark of the Covenant was, so that they might bring from there the Ark of the Covenant of the Lord of hosts, who dwells between the cherubim. And the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were there with the Ark of the Covenant of God. वचन 4 में हम पढ़ते हैं, तब उन लोगों ने शिलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगा लिया, और परमेश्वर की वाचा का संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास भी वहां थे।
And when the ark of the covenant of the Lord came into the camp, all But- Israel shouted so loudly that the earth shook. वचन 5, जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा, तब इज़राइल के लोग इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। Now when the Philistines heard the noise of the shout, they said, "What does the sound of this great shout in the camp of the Hebrews mean?" और वचन 6, इस ललकार का शब्द सुनकर पलिश्तियों ने पूछा, इब्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का कारण क्या है? Then they understood that the ark of the Lord had come into the camp. तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। So I want you to understand and imagine that in the Philistine camp, they suddenly hearing a shout, or such a loud shout that the earth shook. तो आपको अब ये समझना होगा कि जो पलिश्तियों का जो जगह थी, वहाँ पर उन्होंने आवाज़ को, उस गूंज को सुना कि वो पूरी और इज़राइल के लोग इतने जोर से चिल्लाए कि पूरी धरती कांप उठे, ऐसा लिखा है। And then they asked, find out what happened, and then somebody brought the message that the ark of the covenant of the Lord has come into the camp. और जब ये गूंज को जो पलिश्ते के लोगों ने सुना, तो उन्होंने पूछा ये क्या चल रहा है। तब किसी ने उनको आकर बताया कि परमेश्वर की वाचा का संदूक इब्री लोगों के पास में आया है। Now pay attention to verse 7. अब वचन 7 को ध्यान से पढ़े। So the Philistines were afraid, तो वचन कहता है, तब पलिश्ती डर कर कहने लगे। for they said, God has come into the camp. वचन 7 कहता है, तब पलिश्ती डर कर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। And I want you to look at the difference. The Israelites were calling the Ark of the Covenant it, but the Philistines were calling it God. He's saying God has come into the camp. तो अभी हमें ये अंतर देखने की ज़रूरत है कि जब इब्री लोगों ने परमेश्वर की वाचा का संदूक लेकर आया, तो उन्होंने उसको संबोधित किया वह कहकर, लेकिन जब पलिश्ती लोगों ने जब उसको संबोधित करने का समय आया, तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर खुद आ गया है। So the Philistines were having more respect and reverence for the Ark of the Covenant than the Israelites. तो जो पलिश्ती लोग थे, उनके पास में परमेश्वर की वाचा के संदूक के प्रति ज़्यादा आदर था। And this is the reason why the hearts of the people of Israel were not for God, but it was just for the worldly things. तो यहाँ हम देखते हैं कि जो इज़राइल के जो लोग थे, उनका हृदय संसार की चीज़ों के पीछे था, परमेश्वर के पीछे नहीं था। And when they looked at the Ark of the Covenant, it was an object for them. और जब वो परमेश्वर की वाचा का संदूक को देख रहे थे, तो एक चीज के रूप में उसकी ओर देख रहे थे। While the Philistines, when they saw that, when they heard the news, they did not say it has come to the camp. They said God has come to the camp. और इसके विपरीत जब हम पलिश्ती लोगों को देखते हैं, तब जब उन्होंने सुना कि परमेश्वर की वाचा का संदूक वहां आया है, तो उन्होंने उसको वस्तु करके संबोधित नहीं किया, लेकिन उनको पता चला कि परमेश्वर खुद वहां आया है। ये उनका आदर था। So we'll go straight to verse 10. अब हम वचन 10 की ओर जाएंगे। So the Philistines fought and Israel was defeated. और तब पलिश्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इजरायली हार कर अपने अपने डेरे की ओर भागने लगे। And every man fled to his tent. और हर एक अपने अपने डेरे की ओर भागने लगा। There was a very great slaughter, and there fell of Israel 30,000 foot soldiers. और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इजरायली पैदल खेत आए। Also, the ark of God was captured, and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, died. और वचन 11, और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र होफनी और पिनहास भी मारे गए। Imagine the enemy is having more respect for the ark of the covenant than the people of Israel itself. अब कल्पना कीजिए कि शत्रु उस परमेश्वर की वाचा के संदूक का ज्यादा आदर कर रहे थे इजराइल के लोगों से भी बढ़कर। So they won the battle, और इसलिए वो युद्ध जीत गए and they took the ark of the covenant with them. और उन्होंने पलिश्तियों ने परमेश्वर की वाचा का संदूक लेकर वहां से वो चले गए। Now the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, they were very wicked. और जो एली के जो दो पुत्र थे होफनी और पिनहास, वो दुष्ट थे। They were priests, but they were wicked. वो याजक थे लेकिन वो दुष्ट याजक थे। So when Samuel was called by God and anointed by God, Samuel got a message from God saying that these two are going to die. और जब परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता बनाकर, तो परमेश्वर ने उनको बताया था कि एली के दोनों पुत्र मारे जाएंगे। Also the father will die, Eli. और एली भी मारा जाएगा।
So all this happens immediately. Like we are not going to go and read that, but Eli dies and his 2 sons also dies. तो हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि एली भी मरता है और उसके दोनों जो बेटे हैं दोनों मर जाते हैं. But the worst thing for Israel is the Ark of the Covenant was captured. लेकिन सबसे बुरी बात जो होती है इजराइल के लोगों के लिए कि वो परमेश्वर की वाचा का संदूक पलिश्ती लोगों के हाथ में चला जाता है. I want to again skip further and go to verse 19. और हम सीधा भी 19 वचन पढ़ेंगे. We are talking about Phinehas now. हम फिनेहास के बारे में पढ़ेंगे. Now his daughter-in-law Phinehas's wife was with child, और जो फिनेहास की जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, due to be delivered. उसका अभी वो जन्म देने वाली थी. And when she heard the news that the ark of God was captured and that her father-in-law and husband were dead, she bowed herself and gave birth. और जब उसने परमेश्वर की संदूक छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के मरने का समाचार सुना, तब उसको जच्चा का दर्द उठा और वह दुहर गई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ. For her labor pains came upon her. तब उसको उसका जो दर्द है वो उठा, जच्चा का दर्द उठा. And about the time of her death, the woman who stood by her said to her, "Do not fear, for you have borne a son." वचन 20, उसके मरते मरते उन स्त्रियों ने जो उसके आसपास खड़ी थी उससे कहा, मत डर, क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है. But she did not answer, nor did she regard it. Then she named the child Ichabod. परंतु उसने उनको कुछ उत्तर न दिया और न कुछ ध्यान दिया, और उसका नाम उसने इकाबोद रखा, saying, "The glory has departed from Israel." कि कहकर कि इज़राइल में से महिमा उठ गई है. So the meaning of the son's name is Ichabod. The meaning is the glory has departed from Israel. तो उसके बेटे का नाम उसने इकाबोद रखा, जिसका मतलब था इज़राइल में से महिमा उठ गई. Imagine which child would like to have a name that the glory has departed. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कौन ऐसा बच्चा रहेगा जो ये सोचेगा कि मेरा नाम ऐसा हो कि जिसका मतलब हो कि परमेश्वर की महिमा उठ गई. And that was exactly the situation of Israel at that time. और यही परिस्थिति थी इज़राइल की कि उस समय पर इज़राइल की महिमा उठ गई थी. So when the people's hearts were not for God, this is what happened to them. तो जब लोगों के हृदय परमेश्वर के लिए नहीं थे तो उनके साथ में ये हुआ. Later on, actually, I will not get into the details of this. मैं इसमें विस्तार से नहीं जाऊंगा. But when the Philistines took the Ark of the Covenant, और जब पलिश्तियों ने परमेश्वर की वाचा का संदूक लिया, now the Philistines are not the chosen people of God. तो ये ध्यान में रखें कि पलिश्ती जो लोग थे परमेश्वर के चुने हुए लोग नहीं थे. The Israelites are the chosen people of God. इज़राइल के लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं. God gave the design of the tabernacle and the Ark of the Covenant to the Israelites through Moses. परमेश्वर ने मूसा के द्वारा परमेश्वर की वाचा का संदूक और उसका जो मिलाप का तंबू है उसका पूरा जो डिजाइन है कैसे बनाना है, सारी चीजें मूसा को बताई थी, पलिश्ती को नहीं बताई थी. So a lot of terrible things happened to the Philistines when the Ark of the Covenant was with them. तो जब परमेश्वर की वाचा का संदूक पलिश्ती लोगों के साथ में था तो काफी बुरी चीजें उनके साथ में हुई. First of all, they had placed it into their temple where they had their god Dagon. तो उन्होंने क्या किया, पलिश्ती लोगों ने जो वाचा का संदूक था वो उनके मंदिर में रखा, जो और उस मंदिर में उनका जो देवता था डागोन वो भी वहां पर था. It was a statue, and that statue broke and fell in front of the Ark of the Covenant. तो उस मंदिर में उनका जो देवता था डागोन उसकी मूर्ति रखी हुई थी. जब परमेश्वर की वाचा का संदूक वहां रखा गया तो वो मूर्ति दो भागों में वो टूट गई वहां पर और गिर गई नीचे. After that, उसके people बाद started getting tumors. और लोगों को वहाँ पलिश्तियों में फोड़े होने लगे, There were plagues, उनको बीमारियां होने लगी and lot of people started dying. और बहुत से लोग मरने लगे. All this was happening to the people of Philistines. और ये सारा पलिश्तियों के साथ में हो रहा था. And everyone wanted to give away the Ark of the Covenant. They said, "No, I don't want it in our city. We'll push it to another city." And like that, it made rounds to 5 different cities. और वहाँ पर फिर लोगों को ऐसा हुआ कि नहीं, हमको ये परमेश्वर की वाचा का संदूक नहीं रखना है, किसी और को दो. तो ऐसे वो एक शहर से दूसरे शहर, ऐसे 5 शहर में वो घुमा. Somebody had the wisdom to tell, send it back to Israel. और किसी को तो ये बुद्धि सूझी कि चलो इसको इज़राइल में वापस भेज देते हैं. So they started to prepare to give it back to Israel. तो उन्होंने फिर तैयारी की उसको वाचा के संदूक को वापस भेजने की. And it reached the house of Abinadab, who was a priest. और वो वाचा का संदूक अबीनादाब याजक जो था उसके घर में पहुंचा.
And that is where the story of the Ark of the Covenant gets paused for a moment in 1 Samuel. और यहाँ पर अबीनादाब के घर पे आके वाचा के संदूक के विषय में जो बातें हैं वो रुक जाती है. So for many years it is in this person's house, Abinadab, और बहुत सालों तक इस अबीनादाब के घर में वाचा का संदूक रहता है. until many years later, David becomes the king, and that is when again there's a mention of the Ark of the Covenant. और बहुत सालों बाद जब दाऊद राजा बनता है उसके बाद में वाचा के संदूक का फिर से विवरण आता है. Okay, now when David became the king, और जब दाऊद राजा बना he had learned about the Ark of the Covenant. तो उसको परमेश्वर की वाचा के संदूक के विषय में उसने जाना. He had heard about it maybe from his father or maybe from the elders, and he knew about it, and he had a love for the Ark of the Covenant. और दाऊद ने हो सकता है उसके पिताजी से या बड़े बुजुर्गों से सुना होगा परमेश्वर की वाचा के संदूक के विषय में, और उसको उससे प्रेम था. And he wanted, he used to, in his Psalms you will see that he always talks about God being dwelling between the cherubims, and he talks about the Ark of the Covenant in quite a few places. और हम देखते हैं कि दाऊद को उससे प्रेम था, उसको परमेश्वर की वाचा के संदूक के विषय में पता था, इसीलिए वो उसके भजन में कई बार लिखता है कि करूबों के बीच में विराजमान होने वाले परमेश्वर. And right from a very young age, he had a desire to see the Ark of the Covenant and to have it should be in the right place. और काफी कम उम्र से दाऊद की इच्छा थी कि जो परमेश्वर की वाचा का संदूक है वो सही जगह होना चाहिए. This was even before he was anointed as the king by Samuel. और ये उसकी जब वो छोटा बच्चा था तब से इच्छा थी, उसका राजा करके अभिषेक होने से पहले से उसकी इच्छा थी. And how do we know that? It's because of the Psalms. Psalms were written, most of the Psalms were written by David. और हमें कैसे पता चलता है? उसके भजनों से, क्योंकि बहुत सारे भजन दाऊद ने खुद लिखे थे. Okay, so in 2 Samuel chapter 6, हम जाएंगे दूसरा शमूएल उसका 6 अध्याय. David now makes preparations to bring the Ark of the Covenant back to Israel. अब दाऊद तैयारी करता है कि परमेश्वर की वाचा का संदूक इज़राइल में वापस लाने की. It is already with an Israelite priest called Abinadab. और ये जो वाचा का संदूक था वो अबीनादाब जो याजक था उसके पास था. And in verse 1 it says, again David gathered all the choice men of Israel, 30,000. And David arose and went with all the people who were with him from Baal Judah to bring up from there the ark of God, whose name is called by the name the Lord of hosts, who dwells between the cherubim. वचन 1 से पढ़ेंगे. दूसरा शमूएल 6 अध्याय वचन 1 से. फिर दाऊद ने एक और बार इज़राइल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया. तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक लेकर आए जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है. So this is what was there in David's head right in the beginning when he was a child, that the Ark of the Covenant should be in the right place. तो जब दाऊद बच्चा ही था तब से उसके दिमाग में ये था कि परमेश्वर की वाचा का संदूक सही जगह होना चाहिए. And he becomes the king after King Saul's death. He becomes the king of Judah and Israel, and the first thing that he does is to restore the Ark of the Covenant to its right place. तब शाऊल के बाद में जब दाऊद राजा बनता है तो सबसे पहली चीज वो करता है कि पहले परमेश्वर की वाचा का संदूक को वो सही स्थान पे लेकर आता है. Now before going further, I want to just talk a little bit about the Ark of the Covenant. तो आगे बढ़ने से पहले मुझे परमेश्वर की वाचा के संदूक के विषय में कुछ बताना है. And also the tabernacle. और उसके जो मिलाप का जो तंबू है उसके विषय में. Okay, the tabernacle is a place where in the desert, when the people of Israel were in the desert, it was an opportunity for them to encounter God. तो तंबू ऐसी जगह थी जब वो रेगिस्तान में थे तो उस तंबू की जगह पर वो परमेश्वर का सामना कर परमेश्वर से मिल सकते थे, ऐसी वो जगह थी. And it had to be portable so that they could move around with it. और वो ऐसी चीज थी जिसको एक जगह से दूसरी जगह हिलाया जा सकता था. So it was made in the form of a tent. The tabernacle was a tent. जो तंबू था वो एक तंबू था कि जहाँ उसको हिला सकते थे एक जगह से दूसरी जगह. There were wooden pillars. उसके लकड़ी के पिलर थे. And there were curtains and veils. और पर्दे थे उसके साथ में. And there were some
things that were kept inside the tabernacle. और कुछ चीजें थी जो वो तंबू के अंदर रखी जाती थी. I just want you to have a picture of it. और मैं चाहता हूँ कि आप उसका एक पिक्चर बनाएं. Now this is the entrance of the tabernacle. और यहाँ से जो तंबू था उसमें अंदर जा सकते थे. So there was a curtain over here. I've drawn it with these lines. तो यहाँ पर पर्दा होता था. हमने यहाँ पर लाइन बनाई बट यहाँ पर्दा होता था. Then there was an altar और यहाँ पर एक ये वेदी होती थी where sacrifice used to be done on this altar. जहाँ पर बलिदान चढ़ाए जाते थे. Then there was a laver, a sea of bronze. और यहाँ पर एक लेवर होता था So it used to contain water. जिसमें एक पात्र होता था जिसमें पानी रखा जाता था. So the priest would go ahead with the person who is offering the sacrifice. They would kill the animal over here, and then he would come here and he would wash his hands over here. तो जो याजक होता था वो क्या करता था, इस वेदी पे वो बलिदान चढ़ाता था और उसके बाद में यहाँ पर इस जगह पर वो उसके हाथ धोता था. Then you would enter into the holy place. और उसके बाद में वो जाता था पवित्र जगह. This also had a curtain, और यहाँ पर भी पर्दा होता था. and there were 3 objects over here. और यहाँ 3 वस्तुएं रखी जाती थी. There was a table over here एक called the table of showbread. और यहाँ पर एक मेज रखी जाती थी जिसको शोब्रेड मेज कहा जाता था. Here there was an altar of incense. और यहाँ पर धूपदानी रखी जाती थी. ये धूपदानी थी, ये मेज Okay, था. so this is the शोब्रेड टेबल. table of showbread. This is the altar of incense. And over here there was the lampstand. Okay? Lampstand. तो ये मेज थी जहाँ पर रोटी रखी जाती थी. ये ऊपर वाला ये था, ये धूपदानी थी. और ये था दीवट थी, ये दीवट था. After this there was another section. इसके बाद में और एक जगह थी. This और is एक again भाग था. another veil, the veil that separated the holy of holies. तो ये पवित्र स्थान और ये परम पवित्र स्थान, उन दोनों के बीच में एक और पर्दा होता था. And here was the Ark of the Covenant. और यहाँ पर होता था परमेश्वर की वाचा का संदूक. Okay, I'll just write it here. Now, this whole structure is not just random, some things are kept here, there. It is very thoughtfully prepared by God and shown to us. तो ये जहाँ हर एक चीज रखी गई थी, परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी कि तुम्हें ऐसे ही रखना था. परमेश्वर ने कुछ सोच कर बताया था कि ये चीज ऐसी चीज इसी जगह पर रखो. So, and also there are directions, like this is the east, this is the west, this is the north, and this is the south. और परमेश्वर ने ये भी बताया था कि कौन से दिशा में रखना है. जैसे ये पूर्व था, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण. So the entrance had to be from the east side. और जो प्रवेश था वो पूर्व से होना चाहिए था. As you move towards the west, you encounter first the outer court. This is called the outer court. तो जैसे आप पूर्वी दिशा से प्रवेश करोगे तो आप सबसे पहले प्रवेश करोगे बाहर के आंगन में. Then you come to the holy place. फिर आप बाहर के आंगन से आप प्रवेश करते हो पवित्र स्थान में, जो ये जगह थी. And finally last is the holy of holies. और उसके बाद में जो अंतिम जगह थी वो थी महापवित्र स्थान या परम पवित्र स्थान. All right. Now the outside this tent that represents the world. और इस तंबू के बाहर संसार को दर्शाता है. A fallen world. जो गिरा हुआ जो संसार है वो. Where there is sin and sin is dwelling in the fallen world. उसका मतलब है कि जो संसार है, जहाँ जो पाप में पड़ा हुआ है वो संसार. And if anyone wants to come, they have to enter through this gate. और अगर किसी को आना है तो उनको इस द्वार से प्रवेश करना होगा. Remember, Jesus said, "I am the gate." याद रखिए, यीशु ने कहा कि द्वार मैं हूँ. No one can come to the Father except through me.
और उसने कहा कि कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता मेरे बिना। So in all of this structure, you will see Jesus. और इस पूरे इसमें जगह पर आप केवल यीशु को ही देखोगे। So Jesus is the way for people who are living in sin to come and be cleansed from their sin. और यीशु ही द्वार है लोगों के लिए जो पाप में है, उनको शुद्ध होने का द्वार जो है केवल यीशु ही है। Now, when an Israelite has sinned, the only way to come out of sin was by bringing a sacrifice and sacrificing the animal on the altar over here. तो जो इज़राइल के लोग थे, जो अगर उन्होंने पाप किया तो उनको पाप होने के बाद में उनको एक बलिदान लेके आना पड़ता था, तो उनको यहाँ से प्रवेश करके इस वेदी पर बलिदान को चढ़ाना पड़ता था। This was celebrated in the Passover. Every year, the people would come to Jerusalem, bring with their animals, and have a sacrifice being made over here. और ये किया जाता था फसह के पर्व के दिन, जब इज़राइल के सारे लोग इकट्ठा होकर उनके जो बलिदान है वो लेकर आते थे। So the animal would be sacrificed on this altar. जो जानवर का बलिदान है वो इस वेदी पे चढ़ाया जाता था। They would cut the animal and the blood would be drained and collected in a bowl. और यहाँ पर उनको उन जानवरों को काटा जाता था और उनका जो खून था वो एक प्याले में इकट्ठा किया जाता था। Now the priest would wash his hands in this pool of water. और जो याजक था वो उस बलिदान करने के बाद में अपने हाथों को इस पात्र में धोता था। And only after that he would enter the holy place. और अपने उसके हाथों को धोने के बाद ही वो पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। Now in the holy place, I'll talk about these three objects. The table of showbread. तो इस पवित्र स्थान में जो सबसे पहली चीज थी वो थी जो मेज थी ब्रेड की। There were 12 pieces of bread. तो वहाँ पर 12 ब्रेड के टुकड़े रखे गए थे, representing each 12 tribe of the Israelites. तो हर एक जो टुकड़ा था वो इज़राइल के एक एक गोत्र को दर्शाता था। It used to always be there. This table had to always be filled with bread. और इस मेज के ऊपर हमेशा ब्रेड होनी ही चाहिए थी, ऐसा था। The bread, Jesus says, "I am the bread of life," or He is the word that is the bread of life. तो यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, तो वो यही रोटी थी जो इस टेबल पर रखी जाती थी। Over here is the altar of incense. और यहाँ पर धूपदानी रखी हुई थी। Now what does the altar represent? तो ये जो वेदी थी धूपदानी की, वो क्या दर्शाती थी? When we burn incense, smoke comes out and it goes up into the air. तो जब हम धूप को जलाते हैं तब उसमें से एक सुगंध आता है जो ऊपर जाता है। And that represents our prayers and our spiritual life actually. तो वो दर्शाता है हमारी प्रार्थना को और हमारे आत्मिक जीवन को। It goes when we praise God, even our praise and worship that we had. Just imagine having this picture. We are praising God and it is going up to God. तो आप ऐसा इसको समझिए कि जैसे हम स्तुति आराधना करते हैं तो वो परमेश्वर के पास जाती है एक सुगंध के रूप में। Or when we are in a time of prayer with God. So our prayers are not just something we say and nobody hears it. No, it is going up to God. तो जब हम प्रार्थना भी करते हैं तब हम प्रार्थना करते हैं वो भी उसके समान धूप के समान सुगंध के समान परमेश्वर के पास जाती है। तो ऐसा मत समझिए कि आप प्रार्थना करें तो कोई सुन नहीं रहा, परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। No longer now are we required to sacrifice animals. तो अभी हमें बलिदान देने की जरूरत नहीं है, जानवरों का बलिदान देने की जरूरत नहीं है। But we give our praise and worship through our lips in order to let it rise up to God. हम केवल स्तुति आराधना परमेश्वर को देते हैं। So this takes away the need for sacrifice. तो ये जो धूपदानी है वो बलिदान का जो जरूरत है उसको हटा देता है। I'm talking about the time after Jesus sacrificed himself. तो ये हम चीजें अभी जो बता रहे हैं वो यीशु मसीह के बलिदान के बाद की बातें हैं। Because Jesus became the final sacrifice. क्योंकि यीशु मसीह अंतिम बलिदान बन के आया। Okay, and the third thing over here is the lampstand. और अंतिम चीज है वो है दिवट। It had 7 tubes upon which there were lamps, 7 lamps. तो उस दीवट में 7 जगह थी जहाँ पर लैंप रखे जाते थे। And that represents the Holy Spirit. और ये दर्शाता है पवित्र आत्मा को। Because the Holy Spirit is important in our praise and worship. क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे स्तुति आराधना में बहुत महत्वपूर्ण है। We cannot go to God without the help of the Holy Spirit. हम परमेश्वर के पास में बिना पवित्र आत्मा के नहीं जा सकते। Without the Holy Spirit, this whole structure would not be in place.
बिना पवित्र आत्मा के ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा नहीं रह सकता, because it is the Holy Spirit who actually directs our life, gives direction to our lives. क्योंकि We would remain outside if without the Holy Spirit, but we are given this direction only because of the Holy Spirit. तो अब बिना पवित्र आत्मा के हम बाहर ही घूमते रहेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करता है इसमें अंदर आने का। So we are involved in our praise and worship. The Holy Spirit is involved with us. तो जब हम स्तुति आराधना करता है तो पवित्र आत्मा हमारे साथ में उसके सहभागी होते हैं। And that is why praise and worship is such a powerful tool, such a powerful equipment, and as well as way to become one with God. और इसीलिए स्तुति आराधना एक बहुत शक्तिशाली हथियार है परमेश्वर के साथ में एक होने के लिए। So with these three things, we now are getting more and more deeper with God. तो इन तीन चीज़ों के साथ में हम परमेश्वर के साथ में और गहराई से परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं। So only when you pass through the holy place can you get into the holy of holies. तो पवित्र स्थान में प्रवेश करने के बाद ही हम अति पवित्र स्थान में, महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। You have to cross the veil. तो आपको पवित्र स्थान से अति पवित्र स्थान जाने के लिए आपको पर्दे से जाना पड़ता है। This is the same veil that was torn from up to down और ये वही पर्दा है जो ऊपर से नीचे तक फाड़ा गया था। when Jesus died on the cross. जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा तब यही पर्दा था जो फट गया था। That's why when we read about the crucifixion of Jesus and the sky became dark all of a sudden at 3 in the daytime, 3 p.m. It became dark and the veil was torn from top to bottom. तो जब हम यीशु मसीह के क्रूस के विषय में पढ़ते हैं, जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया तब हम पढ़ते हैं कि पूरा जो दोपहर के 3 बजे अंधेरा हो गया था और जो पर्दा था वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया था, फाड़ा गया था। Why it had to be torn was because God is now accessible and being revealed to all people. आमीन। वो पर्दे का फटना या फाड़ा जाना क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि उस पर्दा फटने के बाद में जो परमेश्वर था वो सब लोगों के साथ में और बाकी लोग परमेश्वर के साथ में बात कर सकते थे, उसके साथ में एक हो सकते थे। Earlier the dwelling of God was between the cherubim. पहले परमेश्वर दो करूबों के बीच में वास करते थे। Now the dwelling of God is in our hearts. लेकिन अब परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। To be more specific, in our spirit. और अगर स्पेसिफिक बोले तो हमारे आत्मा में वो रहता है। Okay, so when you entered through the veil, the Ark of the Covenant was there. तो जब हम इस पर्दे से अंदर जाते हैं तो परमेश्वर की वाचा का संदूक रहता था। So that, as I mentioned to you, it was like a wooden box. On top were the 2 cherubims. तो हमने जैसे पहले बात किया, जो परमेश्वर की वाचा का संदूक था वो एक बॉक्स था जिसके ऊपर 2 करूब थे। And the high priest would only come once in a year into this most holy place, and he would take that blood which he collected and he would sprinkle it in that spot between the 2 cherubims. तो महायाजक साल में एक बार ये जो यहाँ पर जो बलिदान किया है उसका लहू लेकर इस अति पवित्र स्थान में, महापवित्र स्थान में लेकर जाकर 2 करूबों के बीच में उसको छिड़कता था। And that is when the atonement that the sacrifice was given for has been completed and the sins are forgiven. और ये करने के बाद में जो लोगों ने पाप किए थे वो क्षमा किए जाते थे, ये पूरा करने के बाद में। So for the whole year, whatever sins the people had committed, that was the point where the sins were forgiven. तो लोगों ने जो पूरे साल में जो पाप किए होंगे, जब लहू यहाँ पर छिड़का जाता था तब उनके पाप क्षमा होते थे पूरे साल भर के। So it's like wiping the slate clean. Like if I wipe this board clean and you'll see a blank board. That is how the state of the people were when their sins were cleaned from their bodies. तो वो ऐसे होता था कि जब वो लहू छिड़का जाता था तो उनकी जो जीवन था वो ऐसा था कि पूरा क्लीन किया गया, स्वच्छ किया गया हो, ऐसा हो जाता था। जैसे अगर हम इस बोर्ड को पूरा पोंछ ले तो जैसे स्वच्छ हो जाएगा वैसे उनका जीवन हो जाता था। And this whole structure also represents us. और ये पूरा जो ढांचा है वो हमें दर्शाता है। The outer court represents our body. जो बाहर का आंगन है वो हमारे शरीर को दर्शाता है, Our physical body. हमारा जो शरीर, जो हमारा देह है उसको दर्शाता है। And when we talk about the flesh, that's also our body. तो जब हमारा जो शरीर है, जो देह है वो हमारे ये बाहरी आंगन को दर्शाता है। The holy place is our soul. और जो
पवित्र जगह है, पवित्र स्थान है, वो हमारे प्राण को दर्शाता है। Our soul is our mind and our heart together. तो जो प्राण है वो हमारी बुद्धि, हमारा मन है। Okay, see, we can see our body, we can see physically our body, but we cannot see our soul. हम हमारे शरीर को, देह को देख सकते हैं, लेकिन हमारे प्राण को हम देख नहीं सकते। But we can experience or feel our soul. लेकिन हम हमारे प्राण को महसूस कर सकते हैं। If somebody says something bad to you, you get angry. अगर कोई हमें बुरा कहता है, कुछ बुरा भला कहता है, तो हमें गुस्सा आता है। Why? Because in your mind or in your heart something has happened, and that is why they are able to touch your heart with those harsh words. क्योंकि आपके मन में, आपके दिल में कुछ तो हुआ कि उस व्यक्ति ने आपको कुछ बोला, आपको इसलिए गुस्सा है क्योंकि आपके मन में कुछ तो हुआ। And if somebody says something good and you like it, you hear something encouraging and you feel happy. या फिर कोई आपके बारे में अच्छी बातें कहता है तो आपको खुशी मिलती है। So that is the holy place which represents our soul. तो ये है पवित्र जगह जो दर्शाती है हमारे प्राण को। And the holy of holies is our spirit. और जो परम पवित्र स्थान है वो दिखाता है हमारी आत्मा को। The spirit is where God dwells. आत्मा वो जगह है जहाँ पर परमेश्वर वास करते हैं। Okay, so God dwelled between the cherubims, तो पहले परमेश्वर दो करूबों के बीच में रहते थे, but in essence this is just a representation of God dwelling in our spirit. लेकिन वो दर्शाता है कि परमेश्वर आज जैसे हमारे आत्मा में रहते हैं वो। Okay, so our spirit is that part of us which we cannot see and we cannot even experience as such. तो आत्मा वो जगह है जिसको हम महसूस नहीं कर सकते और उसका अनुभव नहीं ले सकते। It is not like something where I can come to know anything about my spirit by just asking anyone or by the world knowledge. तो हम हमारी आत्मा के बारे में किसी को भी ऐसे प्रश्न पूछ के या फिर संसार के ज्ञान से हम आत्मा के बारे में नहीं जान सकते। There is only one way to know about our spirit, एक ही मार्ग है हमारी आत्मा के बारे में जानने का, and that is through the word of God. और वो है परमेश्वर के वचन के द्वारा। The word of God tells us about our spirit परमेश्वर का वचन हमें हमारी आत्मा के विषय में बताता है, because whatever truth is present in the Bible about our spirit, that is a reality which we cannot see, we cannot feel, we cannot know through our senses. जो सत्य है, जो बाइबल हमारे आत्मा के बारे में बताता है, वो हम महसूस नहीं कर सकते हमारी इंद्रियों के द्वारा। But through faith we can understand about spirit. लेकिन विश्वास के द्वारा हम हमारे आत्मा के विषय में जो कही गई बातें उनको हम जान सकते हैं। So the things of the spirit will be understood only when we have faith. तो आत्मा के विषय की जो बातें हैं वो हम तभी समझ सकते हैं जब हम विश्वास रखते हैं, तो विश्वास के द्वारा ही हम आत्मा की बातों को समझ सकते हैं। And that is why when we are talking about the spirit, if we have not believed the word of God, it is difficult for us to understand. इसलिए अगर आत्मा के विषय में कहा जाए, अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं जान सकते, विश्वास करते, तो हम आत्मा के विषय में नहीं समझ सकते। And if we want to understand how God's ways work in us, it is through faith, and it happens first in the spiritual realm. तो वैसे ही परमेश्वर की जो मार्ग है वो हमारे जीवन में काम कैसे करता है, अगर हमको उसको जानना है तो विश्वास के द्वारा पहले वो हमारे आत्मा में काम करता है, बाद में वो बाहर आता है। For example, if you are not feeling well and you have the faith to be healed, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है और आपको विश्वास है कि आप चंगे हो जाओगे, so it is already a reality in the spirit. तो ये पहले ही सत्य हो गया है। Jesus made it possible because he took all sickness upon him and provided healing for us. तो ये पहले ही सत्य हो गया है हमारे आत्मा में, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके ऊपर सारी बीमारी को ले लिया। So the price of your sickness has already been paid for on the cross. तो आपकी बीमारी की कीमत पहले ही चुकाई गई है क्रूस पर। And today when we believe in faith, और जब हम जब विश्वास करते हैं, then we are allowing the spirit realm to come into the physical realm. तब हम हमारी आत्मिक चीजों को जो शरीर में बाहर आने देते हैं। So it is like the spirit realm comes into the through our soul comes into the body. तो वैसे होता है कि हम जो आत्मिक चीजें हैं वो आत्मा से प्राण के द्वारा हम शरीर में उसको आने देते हैं।
So this is how our healing works actually. तो It हमारी is a चंगाई ऐसे- reality in the spirit in the first place. तो चंगाई ऐसे ही काम करती है कि वो पहले सत्य होता है हमारी आत्मा में, वो सच बन जाता है हमारी आत्मा में, And then it has to sink into our mind, in our hearts and in our minds. और वो फिर हमारे मन को वो समझना चाहिए कि हमारे मन ने जानना चाहिए कि वो सत्य है, जो आत्मा कह रही वो सत्य है, हमारे मन ने जानना चाहिए। This only happens through faith. और ये होता है विश्वास के द्वारा ही होता है। So the power of the spirit starts flowing through faith into our soul. और विश्वास के द्वारा जो आत्मा का सामर्थ है वो फिर आत्मा से बहकर प्राण में आने लगता है। And once it's in our soul, that means it's in our mind and in our heart, और जब एक बार वो हमारे मन में हमारे दिल में आ जाता है, then it's only the word of declaration that is required for it to flow into the body. तब उसके बाद में हमें केवल घोषणा करनी है, घोषणा के शब्द बोलने हैं कि वो चीज़ें फिर आपके प्राण से आपके शरीर में लागू हो। And that is how our body gets the healing. और इस प्रकार से हमारा शरीर फिर चंगा हो जाता है। So remember, your healing is already a reality. तो ये याद रखिए कि आपकी चंगाई एक वास्तविकता है आपकी आत्मा में। I just gave you the example of healing, मैंने केवल आपको एक उदाहरण दिया चंगाई का, but it is applicable for all spiritual truths like prosperity, wisdom, understanding, all that. This is how it flows. लेकिन यही चीज़ सत्य है बाकी सब चीज़ों के लिए। आपकी समृद्धि हो जाए, बुद्धि हो जाए, ज्ञान हो जाए, उसके लिए भी यही बातें लागू होती है। So this is, I mean, I cannot go more deeper into. There's so much to learn from the tabernacle, but I will take you for a little further. तो और इसमें गहराई से अभी जाने का समय नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें बताने के लिए, लेकिन हम थोड़ा देखेंगे इसके बारे में। So I will erase this. हम अभी इसको Yeah. मिटा देते हैं, अगर आपको फोटो लेना हो तो। Okay, now when the people of Israel were in the desert, तो जब इज़राइल के लोग रेगिस्तान में थे, they had to set up the tabernacle wherever they stopped for a few days. तो जहाँ कहीं वो रुकते थे कुछ दिनों के लिए, तो उनको वो तंबू को लगाना पड़ता था। So this is just a small picture of the tabernacle. तो ये छोटा चित्र है, जो हमने अभी तंबू देखा था पहले बड़ा, उसका छोटा चित्र है। Now God gave specific instructions to the people how they should set themselves up in the wilderness, in the desert. तो परमेश्वर ने जो इज़राइल के लोग थे उनको एक निर्देशन दिया था कि तुमने कैसे वहाँ पर रहना है उस रेगिस्तान में। So when the tabernacle was set up, तो जब तंबू को स्थापित किया जाता था, the first thing is there would be the camps of the Levites, the priests, the priestly tribe. Only the Levites would be dwelling close to and around the tabernacle. तो जो लेवी जो लोग थे, जो याजक थे, वही उस तंबू के आसपास में वो रह सकते थे, उसके आसपास में उनको रहना था। Remember these directions. तो ये जो दिशा है वो याद रखिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। Moses and Aaron would be dwelling over here. मूसा और जो हारून उसका भाई था वो यहाँ रहते थे। All the rest of the Levites would be distributed in camps. They would set up their tents over here. और बाकी के जो लेवी जो लोग थे वो उसके आसपास में रहते थे। Now, apart from this, इसके the अलावा people of Israel would set up their remaining tribes of Israel would set up their camps over here. और जो बाकी के इज़राइल के जो गोत्र थे वो यहाँ रहते थे।
Okay, so the 12 tribes would be there here. तो जो बाकी के जो 12 गोत्र थे वो यहाँ पीछे के जो जगह है वहाँ वो रहते थे, यहाँ पर लेविया लोग रहते थे और यहाँ पर मूसा और हारून उसका भाई रहते थे। Now the Bible even tells you the numbers of people who are there. और बाइबल जो लोगों की संख्या थी उसके बारे में भी बताती है। Okay, so on the east side there was Judah, Issachar and Zebulun. और जो पूर्व दिशा है वहाँ पर यहूदा, इसकार और जुबिलन रहते थे। Zebulun. So the number was 186,400 people. तो उनकी संख्या थी 1,86,400। Over here in the west side was Ephraim, Manasseh and Benjamin. और पश्चिम में इफ्राइम, बेंजामिन Manasseh. और मनश्शे, ये गोत्र के लोग रहते थे। 108,100 people. और उनकी संख्या थी 1,08,100। On the north was Dan, Asher and Naphtali. और उत्तर दिशा में दान, नाशर और नेफ्तलीन। Their number was 157,600. और उनकी संख्या थी 1,57,600। And the south there was Reuben, Simeon and Gad. और दक्षिण में रूबेन, शिमोन और गाद। Their number was 151,450. और उनकी संख्या थी 1,51,450। So you will notice that this is the biggest section, 186,000. और हम देखते हैं कि ये जो पूर्व दिशा में जो लोग रहते थे उनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी 1,86,400। This is the smallest section, 108,100. और सबसे छोटा था पश्चिम में 1,08,100। This is almost equal, 151 and 157,000. और उत्तर और दक्षिण में जो थे उनकी संख्या लगभग समान थी 1,57,600, 1,51,450। Does this strike a picture to you? क्या आपको ये कुछ दृश्य दिखा रहा है क्या? This portion is long. These two are almost equal. And this is a little short. आपको एक दृश्य दिखा रहा है क्या? ये भाग, ये जो लोग थे ये ज़्यादा संख्या में है, उधर के लोग कम संख्या में है, ये और ये उनकी संख्या समान है। If you turn this board this way, then you can see the picture of a cross. अगर हम अभी ये जो बनाया चित्र है अगर हम उसको खड़ा करते हैं तो आपको क्रॉस दिखेगा यहाँ पर। So suppose if we had a drone in the desert of Egypt when the Israelites were there and the drone was flying on top, they would be able to see a good picture of the cross. अगर उस समय अगर ड्रोन होता और वो जहाँ पर इजराइल के लोग ऐसा तंबू बनाकर रहते थे, अगर वहाँ पर ड्रोन लेकर जाते तो उनको अच्छा सा क्रॉस दिखता, क्रूज दिखता वहाँ पर। So whenever the Israelites they settled down in any place with setting up the tabernacle, और जब कभी इजराइल के लोग कुछ दिनों के लिए रुकते थे और जब वो तंबू को स्थापित करते थे, this cross formation was what was displayed from top. और ये क्रूज हर बार वहाँ पर दिखता था अगर ऊपर से अगर देखा जाए तो। And this is talking about Jesus. और ये बात करता है यीशु के विषय में। So in everything of the tabernacle it talks about Jesus. और तंबू की हर एक चीज यीशु के विषय में बात करती है। And that is what God intended. If you understand how Jesus was born, it is through the words spoken by people, the prophets and various rulers and various people in the Bible itself. Those words, when they uttered it, those words were recorded in scripture and that became a reality. The word became flesh through Jesus. तो अगर हम देखते हैं कि यीशु का जन्म कैसे हुआ तो हम देखते हैं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने, राजाओं ने उसके जन्म के विषय में कहा और जब उन्होंने कुछ बातें कही तो वो वचन में लिखी गई थी और वो बाद में वास्तविकता बनी यीशु के जन्म के बाद। There are so many things that are written in the Old Testament about Jesus that you will be surprised that his entire life is actually there in the Old Testament. अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के पूरे जीवन के विषय में वहाँ लिखा गया है। Right from the time of his birth, he would be born of a virgin. उसके जन्म से लेकर कि वो एक कुंवारी से उसका जन्म होगा। Even up to the time where his ministry started and the Holy Spirit, the dove would come upon him. और ये भी लिखा गया था कि उसकी जो सेवकाई है वो कैसे शुरू होगी, उसके ऊपर कैसे कबूतर आएगा। And how he was anointed with the Holy Spirit. और कैसे उसका पवित्र आत्मा से उसका बपतिस्मा होगा। And everything that Jesus spoke was from referring to the word of God. और हर एक चीज़ जो यीशु मसीह ने कही वो उस परमेश्वर के वचन को लेकर वो बात कर रहा था।
So he spoke the truth, which is the word of God, throughout his life. और यीशु मसीह ने सत्य जो परमेश्वर का वचन है वो उसके पूरे जीवन काल में बताया। But for me personally, the most amazing thing is लेकिन मेरे लिए व्यक्तिगत तौर से जो सबसे अद्भुत चीज़ थी वो ये है, if you look at the word of God as a seed. अगर आप परमेश्वर के वचन को एक बीज के रूप में देखते हो, So imagine so many seeds have been, word of God has been spoken by so many different prophets and people and recorded in scripture in the Old Testament. तो बहुत सारे परमेश्वर के जो जन थे उनके द्वारा परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के द्वारा वो जो बीज था, जो बोला हुआ वचन था, वो बोया गया था, जो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं वो लिखा गया है। So all these are like seeds in that form one giant seed. और ये उन्होंने जो कहा था वो छोटे छोटे बीज एकत्रित होकर एक बड़े बीज के रूप में हम देख सकते हैं उसे। And that seed came to life in the form of Jesus. और वो बड़ा बीज उसने जीवन लिया यीशु मसीह के रूप में। And that is how he even lived his life. It's not just his birth, but even his crucifixion and even his death is mentioned in the Old Testament. और इस प्रकार से उसने जीवन उसका जिया, और यही नहीं, यीशु मसीह के क्रूस, वो कैसे क्रूस पे जाएगा, वो कैसे मरेगा, वो ये सारी चीज़ें भी पुराने नियम में लिखी गई थी। Even the extent where they would divide his clothes and they would cast lots, even that is mentioned in the Old Testament. पुराने नियम में ये भी लिखा गया था कि कैसे उसके कपड़े बांटे जाएंगे, कैसे उसके लोग उसके कपड़े ले लेंगे, ये सारी चीज़ों के विषय में पुराने नियम में लिखा हुआ था। And how that he would be like a lamb led to slaughter, but he would not utter a word. और ये भी लिखा गया था कि वो कैसे मेमने के रूप में वो उसका बलिदान देगा और खुद के मुंह से कुछ नहीं बोलेगा, ये भी लिखा हुआ था पुराने नियम में। All this, that is the reason why he is called the Lamb of God. और इसीलिए उसको परमेश्वर का मेमना कहा जाता है। He was the lamb that was sacrificed वो मेमना था जिसको बलिदान किया गया था यहाँ, so that his blood could be sprinkled in the secret place. कि उसका लहू छिड़का जाएगा वो गुप्त स्थान में, उस छुपे हुए स्थान में। Not only in the tabernacle but also in the heavens. केवल उस तंबू में नहीं लेकिन स्वर्ग में भी, And that would provide atoning of our sins. और जिसके द्वारा हमारे पापों का पश्चाताप होगा। So this, I wanted all of us to understand how we can look at this as a picture. God is every time talking about Jesus. If you read throughout the Old Testament, the name Jesus was given in the New Testament, but it was talking about the Son of Man, the Son of God, the Messiah, the Christ, the Anointed One. Everywhere it's talking about Jesus. तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि पुराने नियम में कैसे परमेश्वर के जो पूरा जो वचन है वो यीशु मसीह के विषय में कहता है। यीशु मसीह नाम नए नियम में दिया गया, लेकिन पुराने नियम में उसको अभिषिक्त परमेश्वर का आने वाला मसीहा ये संबोधित करके दिखाया गया था, और हर एक चीज़ यीशु मसीह को दर्शाती थी पुराने नियम में। So that is वhy whenever we look at the Old Testament, we shouldn't just look at it as history. तो जब कभी हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, उसकी ओर देखते हैं, तो हमें वो इतिहास के रूप में नहीं देखना है, उसको इतिहास के रूप में नहीं पढ़ना है। The Old Testament is Christ concealed. पुराना नियम दर्शाता है मसीह जो छुपा हुआ था उसको। The New Testament is Christ revealed. और जो नया नियम है वो यीशु मसीह को, जो मसीहा है, उसका प्रकटीकरण को दिखाता है। And imagine if this was the work of human beings, then so many different writers who wrote, whom the Holy Spirit inspired to write in the Bible, and so many different periods, right from 5,000 years back till the end of the New Testament, the age. So many people can't be so consistent and so accurate with the word. अगर हम देखते हैं कि पुराने नियम में जो लोगों ने लिखा है, अगर वो पवित्र आत्मा उनको नहीं बताता, उनका मार्गदर्शन नहीं करता, तो वो सारे लोग एक चीज़ को इतने सही तरीके से नहीं लिख पाते। लेकिन क्योंकि पवित्र आत्मा ने उनको बताया और उनका मार्गदर्शन किया, तब जाके वो सारी चीज़ें जो उन्होंने लिखी वो एक हुई यीशु मसीह के रूप में। That is why whatever is written in the Bible, और इसीलिए जो कुछ बाइबल में लिखा गया है it is very precious. बहुत मौल्यवान है वो। We call it the word of God हम उसको परमेश्वर का वचन कहते हैं because it cannot break क्योंकि वो टूट नहीं सकता and it cannot vanish. और वो गायब नहीं हो सकता। There were, after the time of Christ and after the disciples, there were lots of conquests and fights, and a lot of people tried to destroy the Bible. और यीशु मसीह के बाद में, उसके शिष्यों के बाद में बहुत सारे युद्ध हुए, झगड़े हुए, जिसमें उन्होंने बाइबल का नष्ट करने का प्रयत्न किया, But no one could succeed. लेकिन कोई भी उसमें सफल नहीं हुआ। And we have the Bible with us, even more popular than when it was written.
और आज हमारे पास बाइबल है, परमेश्वर का वचन है, वो ज़्यादा अभी फेमस है। पुराने जब पहले लोगों के पास में तो उससे ज़्यादा कई फेमस आज हमारे पास है परमेश्वर का वचन। Okay, so I had actually started with a story, with an event मैंने शुरुआत एक घटना से की थी that David wanted to bring the Ark of the Covenant back to Israel. तो हमने जब शुरुआत की थी हम देख रहे थे कि जो दाऊद था उसकी इच्छा थी कि परमेश्वर की वाचा का संदूक वो इज़राइल में उसने वापस लाना चाहिए। I cannot get into the details, there's hardly any time left, but I can just tell you what happens afterwards. तो अभी उसमें विस्तार में जाने का समय नहीं है, लेकिन आपको संक्षिप्त में बताऊंगा कि क्या हुआ था। And after David got through, it was in the Ark of the Covenant was in the house of Abinadab. तो जो परमेश्वर की जो संदूक था वो अमीनादाब के घर पे था। But people had actually forgotten true praise and worship and the proper reverence to be given to the Ark of the Covenant. लेकिन लोग भूल चुके थे कि उस संदूक को, परमेश्वर के संदूक का आदर कैसे किया जाना चाहिए, परमेश्वर की स्तुति आराधना कैसे की जानी चाहिए। Even though God had given precise details of how the Ark of the Covenant was to be carried and where it was to be taken and kept and placed, all those details were given, yet people had forgotten the scripture. परमेश्वर ने लोगों को निर्देशन दिए थे कि तुम्हें कैसे उसके वाचा के संदूक को लेकर जाना है, कैसे उसका साथ बर्ताव करना है, फिर भी लोग भूल गए थे। So what they did is they just put it onto a cart and they said we'll bring it to Jerusalem. और लोग भूल गए कि उसके परमेश्वर की वाचा के संदूक को कैसे ले जाना है, तो उन्होंने क्या किया कि उसको एक बैलगाड़ी के ऊपर रख दिया। So we read that in verse 6 of 2 Samuel chapter 6. हम ये पढ़ते हैं दूसरा शमूएल उसके 6 अध्याय में 6 वचन में। And when they came to Nashon's threshing floor, Uzzah put out his hand to the ark of God and took hold of it, for the oxen stumbled. वचन 6, जब वे नाकोन के खलिहान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। Then the anger of the Lord was aroused against Uzzah, and God struck him there for his error, and he died by the ark of the God. वचन 7, तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहाँ ऐसा मारा कि वह वहाँ परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। So in spite of having the word of God, yet they were not following it. They thought anyhow I can just bring it. Remember, it had become an object for them. तो याद रखिए, वो परमेश्वर के वाचा का संदूक उनके लिए, इजराइल के लोगों के लिए एक वस्तु बन गई थी, और वो भूल गए थे कि उसके वाचा के संदूक को कैसे लेकर आना है, उसको कैसे लेकर जाना है। So how to have the right respect for it, the reverence for the Ark of the Covenant, they had forgotten all that. तो वो लोग भूल गए थे कि परमेश्वर के संदूक का आदर वो कैसे करना है, वो ये चीज़ भूल गए थे। So because they thought it was just like an object, they can touch it anywhere, they can open it, they can look at it. They thought all these things. तो उनको लगा कि ठीक है, ये कोई वस्तु है, हम उसको स्पर्श कर सकते हैं, हमको उसको खोल सकते, कुछ भी कर सकते उसके साथ में। उनके मन में ऐसा चल रहा था, उनको ऐसा लगता था। But God reminded them. लेकिन परमेश्वर ने उनको याद दिलाया। Because when Uzzah tried to hold it, he had to die. क्योंकि उज्रा ने जब उसको हाथ लगाकर उसको थामने का प्रयत्न किया, वो मर गया। And then David understood, I can't just take this Ark of the Covenant like as if it's something. I have to know the right rules, what are the ways of God in order to bring it back to Jerusalem. तब दाऊद को ये समझा कि हाँ, ये जो वाचा का संदूक है कोई वस्तु नहीं, कोई चीज़ नहीं है कि हम कैसे भी उसको लेकर जाए। मुझे उसके विषय में पूरी जानकारी लेनी होगी कि उसको कैसे हम उसके साथ बर्ताव कर सकते हैं, उसको कैसे ले जा सकते हैं। But the Ark of the Covenant was already on the way. And now what could David do? तो लेकिन ये सब होने तक जो वाचा का संदूक था पहले ही आधे रास्ते में था, अब बीच रास्ते में दाऊद क्या कर सकता था? So he had an idea. He said, let it go to someone's house, and it was sent to Obed-Edom's house. तो उसने फिर सोचा कि ठीक है, अभी क्या कर सकते, तो उन्होंने निश्चय किया कि ओबेद-एदोम के यहाँ पर वाचा के संदूक को हम लेकर जाते हैं। In verse 11 it is written, the ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom the Gittite 3 months, and the Lord blessed Obed-Edom and all his household. वचन 11 में कहता है, यहोवा का संदूक गतवासी ओबेद-एदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबेद-एदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। Now Obed-Edom is also from the tribe of Levi, and he knew the rules, he knew
about how to treat the Ark of the Covenant. और ओबेदेदोम वो लेवीय गोत्र से था और उसको पता था कि परमेश्वर के वाचा के संदूक को कैसे रखना है. And he was happy to take the Ark of the Covenant to his house. और वो बहुत खुश था उसके परमेश्वर के संदूक को उसके घर में रखने के लिए. So it says the Lord blessed Obed-Edom and all his household. और वचन कहता है कि परमेश्वर ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी. And not just that, but the news of the blessing went to King David. और केवल इतना ही नहीं, लेकिन ओबेदेदोम को जो आशीष मिली उसकी खबर दाऊद के पास भी पहुंची. And in verse 12 it is written, now it was told King David, saying, the Lord has blessed the house of Obed-Edom and all that belongs to him because of the ark of God. वचन 12 में हम पढ़ते हैं, तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है. तब दाऊद Because of the ark of God. क्योंकि परमेश्वर के वाचा के संदूक के कारण ओबेदेदोम पर आशीष दी गई है, ऐसा पता चला दाऊद को. Now if you remember what happened to the Philistines when they took the ark of the covenant, जब हम पलिश्तियों के बारे में हमने पढ़ा कि जब वो लोग परमेश्वर के वाचा के संदूक को लेकर गए तो उनके साथ क्या हुआ. they had a terrible time because they didn't know the things of God. उनके साथ में बहुत बुरा हुआ क्योंकि उनको परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था. But now it has come to the house of Obed-Edom, लेकिन अब यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर की वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर में गया and he was just being continually blessed. और वो लगातार वो आशीषित हो रहा था. Now David was afraid when Uzzah died because he touched the ark of the covenant. जब उज्जा जब मरा, जब उज्जा ने परमेश्वर के वाचा के संदूक को स्पर्श किया और उसकी मृत्यु हुई तो दाऊद डर गया. So he quickly made a decision that let the ark of the covenant go into somebody's house. तब उसने निश्चय किया कि ठीक है, अभी हम परमेश्वर के संदूक को किसी के घर में हम भेज देते हैं. And that's how it went to Obed-Edom's house. और इस प्रकार से जो संदूक था परमेश्वर का वो ओबेदेदोम के घर में गया. And actually it was there for 3 months. और यहाँ लिखा है कि वो 3 महीने उसके घर पे था. But the news came to King David again that he is being blessed because of the ark of God. और आगे हमने देखा कि दाऊद के पास में खबर पहुंची कि ओबेदेदोम उस परमेश्वर की वाचा के संदूक के कारण वो आशीषित हो रहा है. यह खबर दाऊद के पास पहुंची. So in those 3 months what did David do? उन 3 महीनों में दाऊद ने क्या किया? He made preparations. What is the right way to bring back the ark of God? उसने तैयारी की कि परमेश्वर की वाचा के संदूक को सही तरीके से कैसे वापस लाया जा सकता है. And that verse continues to say, so David went and brought up the ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David with gladness. और आगे वचन 12 के आगे भाग में हम पढ़ते हैं, तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया. Verse 13 says, and so it was when those bearing the ark of the Lord had gone 6 paces that he had sacrificed oxen and fatted sheep. वचन 13, जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया. Now David has learned his lesson. अब दाऊद ने उसको जो सीख थी वो उसको मिल गई. Because now he was giving the right respect to and the right reverence to the ark of God. और अब वो सही आदर उस परमेश्वर के संदूक को वो दे पा रहा था. Verse 14 says, then David danced before the Lord with all his might, and David was wearing a linen ephod. वचन 14, और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा. The linen ephod is something that anyone can wear. There is a priestly ephod which only the high priest can wear. So he was not violating any rule. तो यहाँ जो लिखा है कि सनी का एफोद जो दाऊद ने पहना था वो कोई भी पहन सकता था, और जो याजक था जो वो एफोद पहनता था वो अलग था, इसलिए दाऊद यहाँ कोई नियम को तोड़ नहीं रहा था. So David and all the house of Israel brought up the ark of the Lord with shouting and with the sound of trumpet. वचन 15, यो दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला. He was dancing so vigorously वो इतना नाच रहा था that he even it didn't matter to him how he was appearing in front of the people. तो उसको इससे फर्क नहीं पड़ रहा था कि लोगों के सामने कैसा दिख रहा है ऐसे नाचते हुए. Imagine the king of so many people. कल्पना कीजिए कि ये राजा है बहुत सारे लोगों का, वो नाच रहा है And he's just dancing anyhow. और वो उसको
बेसुध होकर वो नाच रहा है। Literally, you can say he's dancing shamelessly. आप ऐसे कह सकते हैं कि उसको कोई लज्जा नहीं है नाचते हुए। We read further now, as the ark of the Lord came into the city of David, Michal, Saul's daughter, looked through a window and saw King David leaping and whirling before the Lord, and she despised him in the heart. वचन 16, जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही में तुच्छ जाना। And you know the song Nachunga Gaunga Paglo Ke Saman. That's exactly taken from this verse. और Where, आपको ये गान- where David was dancing anyhow, just shamelessly. और आपने ये गाना सुना होगा, नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, तो वो इसी वचन में से लिया गया है कि जहाँ हम पढ़ते हैं कि दाऊद बिना किसी लज्जा के वो नाच रहा था परमेश्वर के वाचा के संदूक जब वापस लेकर आ रहे थे तब। Verse 17 says, so they brought the ark of the Lord and set it in its place in the midst of the tabernacle that David had erected for it. वचन 17 में पढ़ते हैं, लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए और उसके स्थान में अर्थात उस तंबू में रखा जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था। So finally the ark of God had a resting place. और अंत में जो परमेश्वर का तंबू था उसके लिए एक विश्राम की जगह मिली। However, it was still a tent. वो तंबू ही था, The tabernacle was still a tent. वो तंबू ही था। And David had a desire to build a house of God. और दाऊद की इच्छा थी कि परमेश्वर के लिए एक घर बनाए। But God told him that you are a man of bloodshed, you have fought wars, so you will not build my house. लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा कि तेरा हाथ रक्त से लथे हुए है तो तू मेरे लिए घर नहीं बनाएगा, But your son will build the house for लेकिन me. तेरा बेटा मेरे लिए घर बनाएगा। And when Solomon became king, और जब सुलेमान जब राजा बना, he never had to fight any battle. उसको कोई भी युद्ध लड़ना नहीं पड़ा, He had peace all around. उसके चारों ओर उसको शांति मिले, ऐसा वचन कहता है। He was never involved in bloodshed. उसमें उसको कोई भी उसको किसी भी रक्त में उसको भाग नहीं होना पड़ा। And he was chosen to build the final temple that was constructed and where the ark of God was resting. और उसने सुलेमान ने, जिसने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा, उसने परमेश्वर के तंबू के लिए, उसके संदूक के लिए एक घर बनाया, ऐसा वचन कहता है। However, this tabernacle and this temple is just a shadow. लेकिन ये जो तंबू है, ये जो घर है, वो केवल एक परछाई है Of the real things that is in the spirit world. असली चीजों की जो आत्मा में है उसकी वो परछाई है। Because God dwells in our spirit, क्योंकि परमेश्वर हमारे आत्मा में रहता है, not in physical places. किसी हाथों से बनी हुई जगह पे नहीं। But this is just a demonstration for us to understand how God functions and how God is desiring the best place of our being, that is our spirit. लेकिन वो केवल हमें दिखाने के लिए कि कैसे परमेश्वर हमारे साथ रहता है। And when we give the right honor, respect and reverence to God, everything starts becoming a blessing for us. और जब हम परमेश्वर को सही आदर देना शुरू करते हैं, तब हर एक चीज़ हमें हमारे लिए एक आशीष का कारण बनती जाती है। Just like Obed-Edom, who just continuously started receiving blessings. जैसे ओबेद-एदोम के बारे में हमने पढ़ा कि जैसे परमेश्वर का संदूक उसके पास में आया, वो आशीषित होता गया। We have a lifetime of blessings हमारे पास पूरा जीवन काल है आशीषित होने का, because of the presence of God in us. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ में है। When God dwells in our spirit, जब परमेश्वर हमारे साथ में, हमारे आत्मा में रहता है, the word actually is tabernacle. तो उसका जो शब्द है वो है टैबरनैकल, जिसका मतलब है तंबू। Tabernacle means tent, it also means dwelling place. तो जो टैबरनैकल है उसका मतलब, जिसका मतलब है तंबू, उसका मतलब ये भी है कि रहने की जगह। And God tabernacles with us. और परमेश्वर हमारे साथ में रहता है, हमारे साथ में वास करता है। That is what our spirits are made for. और इसके लिए ही हमारी आत्मा बनाई गई है। So he dwells in our spirit, he tabernacles in our spirit and he is with us. और वो हमारे आत्मा में रहता है और वो हमारे साथ में है। And that is what Emmanuel, the name for Jesus, means God is with us. और वही से नाम आया है इम्मानुएल, उसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ में है। Okay, so the reality was not clear to people
in the Old Testament times that God is dwelling among us, for them they always pictured a physical place and a physical king and we living with God. That kind of a picture they had. But in the New Testament now we understand that God lives in our spirit. He is with us and always by our side through whatever we go through, and He is dwelling with us, so it's a blessing for us. तो हम पुराने नियम के लोगों को देखते हैं तो उनको ये वास्तविकता नहीं पता थी कि परमेश्वर को वो हमारे साथ रहता है। उनके लिए था कि परमेश्वर किसी जगह पे रहता है, वहाँ पर जाकर हम परमेश्वर से मिल सकते हैं। लेकिन नए नियम में परमेश्वर हमारे साथ रहता है तो हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए एक वास्तविकता हो गई है और हर एक चीज़ जो परमेश्वर करता है वो हमारे लिए एक आशीष का कारण बनती है। So no matter what you are facing in life, तो जो कुछ आप आपके जीवन में जिसका भी सामना कर रहे हो, if you have received Jesus as your Savior, अगर आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, then He is always with you तो वो हमेशा आपके साथ में है and He is dwelling in you. और वो आपके साथ में आपके अंदर रहता है। Your body is the temple of the Holy Spirit. आपका जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। And when you hear the word temple, just remember this tabernacle. और जब आप इस मंदिर शब्द को सुनते हो तो तंबू इस शब्दों को याद रखिए, टैबरनेकल इस शब्दों को याद रखिए, रहने की जगह, वो उसका मतलब है। The veil was torn down जो पर्दा है वो फाड़ा गया so that God could be revealed to us कि जिसके द्वारा परमेश्वर हम पर प्रकट हो and we could have fellowship with God. और हम परमेश्वर के साथ में सहभागिता कर पाए। That is the ultimate purpose of God. और यही परमेश्वर का जो उद्देश्य था हमारे लिए, वो यही था That we live each and every moment with God. कि हम हर एक क्षण हमारे जीवन का हम उसके साथ में व्यतीत करें, बिताए। So no matter what is troubling you at the moment, just surrender it to God. He will take care of you. तो इस समय आप किस भी चीज़ से जा रहे हो, अपने आप को समर्पित करें और परमेश्वर आपके साथ है, याद रखिए। Remember, God will always continue to bless you. He is not against you. He is for you. याद रखिए परमेश्वर आपका विरोधी नहीं है, परमेश्वर आपके साथ में है। And there are many things we don't know how to do, which God will teach us through His Holy Spirit. बहुत सारी चीज़ें हैं हम नहीं जानते कि हमें कैसे करने, लेकिन पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। And it is because God resides in our spirit that through faith that spiritual truth will become a reality in our bodies. क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है तो जो आत्मिक सच्चाई है वो हमारे लिए सच बन जाएगा। So I pray that each and every one of you, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमें से हर एक जन that you will with this understanding give the right place to God in your life. तो ये जान कर, ये समझ कर हम परमेश्वर को सही स्थान दें। मैं ये ऐसा कहना चाहता हूँ। And don't treat God like a lucky charm. और परमेश्वर को आप कोई लकी चार्म ऐसा करके उसका साथ बर्ताव मत कीजिए। Give Him the respect and the reverence that is due. उसको वो आदर दे जो उसको देना चाहिए, वो ऐसा आदर हम परमेश्वर को दे। And you will see His blessings coming through. और आप आपके जीवन में उसके आशीषों को आते हुए देखोगे। Let us pray. हम प्रार्थना करें। Hallelujah. Father, I thank you, Lord, that your word is the truth, and that your truth, when it goes out into the hearts of people, that they may welcome it and receive it with joy, so that it will start bearing fruit. प्रभु हम धन्यवाद देते कि आपका वचन सत्य है। जब ये सत्य वचन आपके लोगों के बीच में जाता है तो उनके जीवन में वो सत्य को लेकर आता है और उनके जीवन में फलों को वो लेकर आता है। And Lord, may your word become alive in their lives. और प्रभु होने दीजिए कि आपका वचन उनके जीवनों में जीवित हो जाए, so that it will bear fruit. कि जिसके द्वारा वो फल लेकर आए। And thank you, Lord, for your Holy Spirit धन्यवाद पिता आपके पवित्र आत्मा के लिए that teaches us all things, जो हमें हर एक चीज़ सिखाता है, so that we no longer need to be ignorant, कि हम अभी उससे अनजाने ना रहे, and that we will make use of the truth, और हम उस सत्य को लेकर चले so and bring fruit to our life. और हमारे जीवन में फलों को लेकर आए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमेन। So the worship team will take the final song. एक अंतिम गीत को हम गाएंगे।
कितने लोगों को आज का वचन बहुत समझ आया और सुंदर लगा? It was so deep. Thank you, Brother Dillon. It is so impactful. What we see here, you know? And this, what you see here, is always in our hearts. You know? Let's sing this Marathi song. हा दिवस प्रभूचा आहे, तारक तो. दिवस प्रभूचा आहे, आपण उल्हास व आनंद करू. हा दिवस प्रभूचा आहे, आपण उल्हास व आनंद करू. स्वर्गाच्या देवाला स्तुतीचे गीत गाऊ. स्वर्गाच्या देवाला स्तुतीचे गीत गाऊ. तारक तो, सामर्थ तू, सामर्थ तू, येशू देव युगा युगा है. तारक तो, सामर्थ तू, येशू देव युगा युगा है. आहा, हालेलुया, ओ होसाना. आहा, त्याकडे आपण महिमा आनंद करू. चला हो आता त्याकडे आपण महिमा आनंद करू. किती थोर तो दे, स्वर्णस्व आपणास दिले. किती थोर तो दे, सर्वस्व आपणास दिले. तो सामर्थ्य तो युगा युगा है. तारक तो सामर्थ्य तो येशू देव युगा युगा है. आहा, हालेलुया, ओ होसाना. आहा, हालेलुया, Hallelujah, 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 hallelujah. त्याचा अनुभव घ्या, किती तो चांगला आहे. त्याचा अनुभव घ्या, किती तो चांगला आहे. सैतानी बंधनातुनी आपण असं सोडवितो. सैतानी बंधनातुनी आपण असं सोडवितो. तारक तो, सामर्थ्य तो, येशू देव युगा युगा है. तारक तो, सामर्थ्य तो, येशू देव युगा युगा है. आहा, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. बोलो यीशु मसीह की जय. Amen. Jesus. I call upon Dillon brother to give the last benediction. Praise God. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And we all say, Amen.
please meet one another and have a good time of fellowship. Amen.